اوکے تو ہم یہ پڑھ رہے تھے جب ہم لونلینس فیل کریں، ہیلپ لیس فیل کریں، اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ غم نہیں کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، رائٹ؟ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ ہمارے دل کو بڑا سکون پہنچاتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہو یا نہیں ہو لیکن اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہم اسٹریس کس چیز کا لیتے ہیں؟ جب کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، ہمارے مرضی کے خلاف ہوتی ہے، تو اللہ پاک آگے کیا کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور عنقریب ایسا ہے کہ کوئی چیز جو تمہیں پسند ہو اس میں بہت سا شر ہو، اور جو تمہیں ناپسند ہو اس میں بہت سا خیر ہو، رائٹ؟ اور تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے نا؟ کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن اللہ پاک کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے اس میں بہت زیادہ خیر ہے، اور جن کو ہم پسند کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ ہمارے لیے شر ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ پاک جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس آیت میں اللہ پاک نے کس طریقے سے اوپنلی بتا دیا کہ اس میں کوئی ایسا بات نہیں کہ ایک چیز جو ہماری پلاننگ، ہمارے مائنڈ سیٹ اور ہمارے نظریہ، ہمارے پوائنٹ آف ویو کے مطابق ہمیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، ایک جاب، ایک کریئر، ایک فیلڈ یا ایک شخص ہمیں اپنے لیے سب سے بہترین لگ رہا ہوتا ہے، مگر اصل میں ہم نہیں جانتے، نہ ہم نے مستقبل دیکھا ہوا ہے، مگر وہ رب اس کی اور پلاننگز ہیں اور اس کے اور طریقے ہیں، وہ ہے جس نے ہمیں بنایا اور ہمارا مستقبل لکھا، ہمارا فیوچر لکھا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے۔ اور یا ہم بتائیے کون جانتا ہے زیادہ، وہ یا ہم؟ وہ رب جانتا ہے نا۔ اللہ پاک is the best of planners، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ We plan and Allah plans، surely Allah is the best of planners، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر اور کیا نہیں، رائٹ؟ پھر ہم گر جانے پر، فیل ہو جانے پر یا من چاہی چیز نہ ملنے پر شکوہ کیوں کرتے؟ اور ہوتے کون ہم سے شکایت کرنے والے؟ ہم کون ہے جو اللہ کی پلاننگ کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے ڈٹ کے کھڑے ہو جائے اور ناشکری کریں؟ ہم جانتے ہیں کہ یقین کامل، مطلب یہ یقین ہو جانا یا یقین کامل بہت مشکل ہے، مگر یہ یقین پیدا کرنا ناممکن کام نہیں ہے۔ ابھی آپ خود سے سوال کریں کہ کیا آپ جس معاملے کو لے کر پریشان ہیں اسے آپ اس ذات سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے؟ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا انعام، تھوڑا دھیان سے سنیے گا، کہ سب سے بڑا انعام سب سے بڑی آزمائش کے بعد آتا ہے، اور جس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ سوچے، جس سے محبت کرے گا صرف اس کو ہی آزمائے گا، اور اس آزمائش پہ صبر کرنے کے بعد تو سب سے بڑا انعام ملتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے غم ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، اگر زندگی سے غم نکال دیے جائے نا تو وہ پھیکی ہو جائے گی۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک وجہ بھی نہیں ہوگی۔ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، and it's true کہ جب آپ غم سہتے ہیں نا تو آپ اسٹرانگ بنتے ہیں، یہ غم آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتا ہے، literally I'm telling you it is my personal experience کہ جب آپ غم سہتے ہیں نا، آپ کو تکالیف آتی ہیں، بھلے وہ آپ کے ہیلتھ ایشوز ہو، بھلے وہ آپ کے فائنینشیل ایشوز ہو، کیسے بھی ایشوز ہو، کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، آپ کے مارکس کم آ جائے، تو آپ اس سے اسٹرانگ بنتے، پھر آپ کو دنیا کی رنگینیاں جو ہے متاثر نہیں کرتی، پھر آپ کی پرسنالٹی میں ایک الگ ہی اسٹرانگنس سی ہوتی ہے، آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک وجہ بھی نہیں ہے، غم ہمارے پاس نہیں آئے، ہمارا کنیکشن جو ہے وہ کریٹر کے ساتھ جوڑنے کے لیے غم بہت پاورفل چیز ہے۔ دنیا کے کتنے بڑے بڑے منکرین، یعنی کتنے بڑے بڑے اللہ کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اپنی تکلیف کی انتہا پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ غم ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیڈ بریکرز ہیں، تاکہ ہم اس بھاگتی دوڑتی زندگی کی ریس میں ذرا کچھ لمحوں کے لیے رکیں، سوچیں، کچھ نیا سیکھیں، اپنا بیسٹ دیں اور پھر آگے بڑھ جائیں۔ یہ غم کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، ان میں میسج کوڈ کیے گئے ہوتے ہیں، مگر اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ اول تو ہماری زندگی میں بیلنس نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ہم دوڑتے ہیں نا تو اتنی سپیڈ سے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ سپیڈ بریکرز آنے پر ہم اچھل کر زمین پر گر جاتے ہیں،
राइट। हम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा रेस में है, इतना ज्यादा रेस में है कि हम गम से कोप नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत तेज भाग रहे हैं। जब गम आते हैं तो हम बिल्कुल लाइक बौखला जाते हैं, ये हो क्या रहा है, हम गिर जाते हैं क्योंकि हमारी जो स्पीड बहुत तेज है, राइट। और जब गिरते हैं ना तो ऐसे गिरते हैं कि कितने कितने अरसे तक उस एक लम्हे से बाहर ही नहीं आ पाते जिससे हम गिरते हैं। हम आजमाइश को, तकलीफ को, मुसीबत को सर पर इंतहा से ज्यादा सवार कर लेते हैं। हम तकलीफ में भी उस इंसान को देखने में बहुत खुश होता है, कामयाब हो, अच्छी जिंदगी गुजार रहा हो। हम ये नहीं सोचते कि वो अपनी आजमाइश पार कर चुका है। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि हर किसी, अगर आप अपने और लोगों को देखें जो खुश है कि उनकी जिंदगी में कोई मसाइल नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी में उनके भी मसाइल होते हैं। हर किसी की जिंदगी में मसाइल होते हैं, हर किसी की जिंदगी में। एक कामयाब इंसान की जिंदगी में मसाइल होते हैं और एक गरीब इंसान की जिंदगी में मसाइल होते हैं। हर किसी की जिंदगी में मसाइल है, बस हर किसी को अलग है। किसी को अल्लाह पाक ने जो है वो इमोशनल मसाइल दिए हैं, किसी को फाइनेंशियल, किसी को मेंटल, किसी को फिजिकल, राइट। हर किसी के मसाइल डिफरेंट है, लेकिन हर किसी की जिंदगी में मसाइल जरूर है। हम ये नहीं समझे कि और खुश है तो हम क्यों ना खुश है, नहीं। वो खुश है लेकिन वो अपनी आजमाइश से गुजर गए। हर किसी की आजमाइश का एक वक्त होता है, हर किसी के गम का एक वक्त होता है। अगर हम अपने गम में रहेंगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह पाक ने क्या कहा, इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा, कि मुश्किल के साथ आसानी है और फिर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह पाक बार बार हमें ही आयत पढ़ते हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है। जब अल्लाह पाक गम देते हैं तो उसके साथ हमें अल्लाह पाक क्या देते हैं, हमें उस गम से निकलने के लिए जो ना दिमाग में दिया। अल्लाह पाक ने हमें बताया भी कि हमें कैसे उस गम से निकलना है, कैसे उस गम से जो है वो कोप अप करना है, राइट। तो हमें पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं? क्योंकि जब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते तो हम क्या करते हैं, बौखला जाते हैं। हमें यूं लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारे दरवाजे जो है वो बंद हो गए हैं, और हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस वक्त सिचुएशन पर गौर ही नहीं करते। आप हालात पर गौर करें ताकि अल्लाह की प्लानिंग समझ में आने लगे। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह पाक किसी भी नफ्स को उसकी इस्ताअत से बढ़कर गम देता ही नहीं है, आजमाता ही नहीं है, बोझ डालते ही नहीं है। और एक जगह अल्लाह पाक क्या फरमाया सूरह तलाक में कि अल्लाह किसी नफ्स पर बोझ नहीं डालता मगर उसके मुताबिक जो उसे दिया गया है, और अनकरीब अल्लाह तंगी के बाद क्या करेगा, आसानी पैदा करेगा। तो इन तमाम डिप्रेशन की एक और वजह भी होती है कि जो हमारे नजदीक सबसे बड़ी वजह है कि इंसान जब अपनी जात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करना शुरू कर दे, अपनी जात पर डिपेंड करना शुरू कर दे, और उसे ये लगता है कि हर अचीवमेंट मेरी है, मेरी ही मेहनत से मिलेगी। जब वो अल्लाह पाक को इक्वेशन से माइनस कर दे तब क्या होता है, तब वो डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह पाक को पता है हम इंसान कमजोर है, अल्लाह पाक ने हमें कमजोर बनाया, और जब अल्लाह पाक को माइनस कर दे, अपने खालिक को माइनस कर दे, तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। और अल्लाह पाक क्या फरमाता है एक जगह, और इंसान शर को इस तरह मांगता है जैसे खैर, और बेशक इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ई हुआ है। ये आयत हमें हमारे नेचर को बताती है कि हम इंसान बहुत जल्दबाज है। इस्लाम दीन फितरत है, और इस आयत से वाज़ेह हो रहा है कि हम जिस चीज के लिए जल्दी बजा रहे होते हैं ना, कि हमें बस उसको हासिल करना है, वो हमें गम देती है ना अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम में हासिल नहीं होती है, राइट। तो उसमें वाला शर भी होता है, वो हमारा शर है। तो उस शर को हम मांग रहे होते, जल्दी नहीं। आप आराम से, आप पेशेंस रखें लाइफ में, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखें तो हमारे ऊपर बहुत सारे रीजन हमें पड़ेगा, लेकिन हर सबका कनेक्शन अल्लाह पाक से जाता है। अगर आप अल्लाह पाक से करीब होंगे ना तो आप कभी डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं, आप कभी स्ट्रेस में, एंजाइटी में जाएंगे ही नहीं, राइट। अगर आप वाकई जो है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो आप कभी डिप्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो रब है, और उस रब ने आपको आज तक छोड़ा नहीं, तो अब वो अब कैसे छोड़ सकता है, राइट। हमारे डिप्रेशन के पीछे हमारा अपना हाथ होता है। हमें लगता है कि खुदकुशियां खुद हम ही हासिल कर, की खुशियां जो है वो हम खुद हासिल कर सकते हैं, राइट। और हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया कि हर अच्छाई अल्लाह की तरफ से आती है,
ठीक है, कोई छोटी से छोटी खुशी भी हमारी अपनी मेहनत से नहीं मिलती, अल्लाह पाक की तरफ से होती है, वो हमारे नसीब में लिखी होती है, हमारे वक्त में लिखी होती है, राइट। तो बस हम क्यों घबराते हैं, हर गम अल्लाह पाक की तरफ से लिखा होता है, हर किसी की अपनी आजमाइश, हर किसी की अपनी खुशी, हर किसी की अपनी गम होते हैं। हमें किसी और को देख के नहीं सोचना कि उतना खुश है, नहीं, वो भी किसी जमाने में आपसे बुरे आजमाइश से गुजर कर आ गया होगा, अब आपका वक्त है। अब उस वक्त को हंसी खुशी झेलिए, ये सोच के कि ये अल्लाह पाक की अल्लाह पाक की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। जब हम तवक्कुल सिर्फ अपने आप पर करने लगे तब हम डिप्रेस्ड होते हैं। जब हम ये सोचें कि अगर अच्छे ग्रेड्स या अच्छी जो है सीजीपीए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही दे सकते हैं, जब हम फिर सोचें कि हमारी जॉब तो सिर्फ हमारे बॉस के हाथ में है, तो जब हमें लगे कि पैसे मुझे फला इंसान ही दे सकता है, तो ये क्या होगा, इसमें क्या हो गया, इसमें हम तवक्कुल अपने आप पर कह रहे हैं। हम इक्वेशन से अल्लाह पाक को माइनस करते ना, तो फिर हम स्ट्रेस्ड आउट, डिप्रेस्ड और एंग्शियस हो जाते हैं। एक हदीस में है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करूं जैसे वो मेरे साथ गुमान रखते, जैसे वो मेरे बारे में सोचता है। आप अल्लाह के बारे में पॉजिटिव है तो अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव है तो आपकी जिंदगी में गम और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमारे गुमान से अल्लाह पाक क्या है, अगर हम वाकई अल्लाह पाक के फैसले पर राजी हैं, अगर वाकई हम यकीन रखते हैं तो कि हर बुराई और भलाई का मालिक अल्लाह पाक है, और अगर हम यकीन रखे हैं कि कोई चीज हमें उसके हमें इस अगर हम ये देखें कि कोई चीज हमसे इसलिए ली गई थी क्योंकि इसमें शर था, या फिर हम शर को मांग रहे थे अल्लाह पाक से, जैसे कि, तो फिर क्या होगा, हम डिप्रेस नहीं होंगे। देखिए, मोमेंट डिप्रेस नहीं होता, डिप्रेशन शैतान की तरफ से आता है, और अल्लाह ताला ने शैतान का एक और नाम कुरान में जिक्र किया, इब्लीस। और इब्लीस के माना क्या होते हैं, अल्लाह की रहमत से शदीद नाउमीदी, और डिप्रेशन नाउमीदी की वजह से होता है, पेसिमिस्टिक आपकी अप्रोच हो जाती है तब होता है, इसलिए इसकी निस्बत शैतान की तरफ की गई है। समझ रहे हैं आपको आप लोग कि डिप्रेशन कितना ज्यादा नुकसानदेह है। अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर आपको काउंसलिंग की नीड हो तो आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए। हम्म, इट्स योर क्वेश्चन टाइम, बताइए। जी, आपको क्या चीज परेशान करती है, फिर आप किस चीज से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि आप याद रखें कि हर चीज का कनेक्शन आपका अलग अलग है। आप लोग टीनेजर्स हैं अभी तो है, ठीक है, ऐसे आप सोचते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज करनी है, आपको कोई पर्टिकुलर एम हासिल करना है, तो वो कैसे होगा, बस सोचे, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पाक से मदद मांगते रहे, राइट। अगर आपके ग्रेड्स है, आई वुड से कि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो आजकल जो है बच्चों को इन ग्रेड्स की बेस पे जो है वो जज करता है, तो आप मत हो जज, आप मुस्लिमास हैं, आप स्ट्रांग रहिए, लोग आपको जज करते हैं, लेट देम डू, ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, आप जो है बेसिकली अपनी जात में बहुत ज्यादा कीमती है, राइट। तो इसलिए अब बताइए मुझे, आप कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, चलो हम क्लास एंड करते हैं। एंड आई होप अगर कोई भी डाउट हो आज के सेशन में तो आप मुझे बताइए, कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन, या इवन अगर आपको कोई बात शेयर करनी हो कि आपने अपनी जिंदगी में कैसे चीजों से कोप अप करा ताकि वो औरों के लिए मोटिवेशन बन जाए, तो इंशाल्लाह आप वो भी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हम्म, बताइए। नब को पता है, सबसे प्यारी एक आयत है कुरान की सूरह ज़ुहा की कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि आने वाली जिंदगी जो है वो पहली वाली जिंदगी से बेहतर होगी। जब भी ये गम आए ना, आपकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो याद रखिएगा कि अगर ये आज आपको तकलीफ है तो कल आपकी सुबह बहुत प्यारी होगी, कल सारे को वाला पाक दूर कर देगा, बस चंद दिनों की बात होती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। जी, अल्लाह पाक से बात करें, सबसे बेस्ट हल है वो, टॉकिंग टू अल्लाह इज द बेस्ट थेरेपी।
सही बात है, अगर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हर चीज से ज्यादा वो आपसे मोहब्बत करते हैं। एंड इवन बहुत से लोग ये कहते हैं कि मतलब आई थिंक आप लोगों ने देखी हो, एक आई थिंक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है आयना आसिफ, तो वो ये कहती है कि मतलब नमाज जो है ठीक है इंसान पढ़ता है, लेकिन उससे सुकून नहीं मिले। हम तो उस टाइप को कुछ कहती है कि ठीक है नमाज पढ़नी चाहिए, बट अगर आपको इमोशनल वो है प्रॉब्लम है, तो आप सब हेल्प लें, साइकोलॉजिकल हेल्प, कुछ ऐसी कहती है, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ कुछ ऐसा ही था। तो देखिए, आई वुड से कि हम लोग उन लोगों को एनालाइज करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। अल्लाह ताला के सिवा सुकून कहीं पर है ही नहीं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेडिकेशन रिक्वायर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज में सुकून नहीं है। आप अल्लाह पाक के आगे झुकते ना, तो आपको एक अलग ही दुनिया में आप खुद को महसूस कर रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए जो है आई वुड से कि आप ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दें, बिकॉज आई वुड से दे आर मीन्स ऑफ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन। चलिए, आप कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। तो हम इंशाल्लाह क्लास एंड करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम से क्लास इंशाल्लाह 8 पे ही होगी, 8 PM पे, ठीक है, बिकॉज नमाज 7:30 पर हो रही है, अब 7:20 7:30 पर, तो इंशाल्लाह इसलिए। ओके, सो आज अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ भी हो बताइए मुझे आज के सेशन में। इवन अगर आपको व्हाट्सएप पे मुझसे कुछ शेयर करना हो तो मोस्ट वेलकम। ओके। हम्म। नो डाउट्स, एंड व्हाट अबाउट, okay, Aisha has no doubt about Manan, Laiba and Fatima. हम्म। कोई डाउट्स हो, कुछ भी शेयर करना हो। Jazakallah khair Laiba for this beautiful message. Okay. And even one more thing, अच्छा, I remember something, जब लाइबा ने लिखा ब्रीथ, या अगर आपको कभी भी लाइक ऐसा होता है ना, कभी कभी हाथ शिवर करने लग जाते हैं स्ट्रेस से, ऐसा होता है, और नॉर्मली आई वुड से कि बहुत ज्यादा कॉमन है टीनेजर्स में, तो नथिंग एल्स, जस्ट सिट, ओके, away from all the distractions, and बहुत and start taking deep breaths, ठीक है, deep breath लेना स्टार्ट कर दीजिए, एंड उससे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये कॉमन है यंगस्टर्स में, आई वुड से कि एनवायरनमेंट है या फिर क्या है, लेकिन यंगस्टर्स के साथ ये बहुत ज्यादा इशू है कि उनको अटैक्स होते हैं, इवन थोड़े थोड़े स्ट्रेस से अटैक, पैनिक अटैक्स। जब भी आपको ऐसा होना, आपके हाथ शिवर करे, फिर आपको इस तरीके का कुछ भी फील हो कि आप ओवर, टेक डीप ब्रेथ्स, ठीक है। एनीथिंग एल्स? एंड और हम क्लास एंड करें इंशाल्लाह। आई होप किसी को कोई डाउट्स नहीं, चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.